everyone. Welcome to our 11th episode of Social Psychology series. I'm Adnan Azim. With us is Mr. Aftab Shah, Head of Psychology Department at Greenwich University. Today, we're going to be discussing aggression and we're going to be looking at the leading causes of aggression and how aggression is learned and then how exactly it's manifested. Yeah, definitely. In the last episode, we had covered the topic of aggression, and there were three basic perspectives that we were looking at, right? So we were looking at the role of biology. We were looking at, then we were supposed to cover, obviously, the role of frustration in aggression, and thirdly, the social learning theory. In the last episode, we had covered the biological aspect, and within the biological aspect, we talked about genetics, we talked about biochemistry, particularly the role of sleep over diet and the use of alcohol and how that fuels your aggression, and we talked about hormones. Um, Collectively, these three things they cover the role of biology and how it fuels your aggression. We also talked about the two-way traffic, right? So whether the person is aggressive or their environment is aggressive, right? The two-way traffic between your biology and your behavior, right? So your behavior, whatever your environment is, that is fueling your biology. The fact that you are predisposed to anger, let's say, or the fact that you already have those genetic components that is causing more anger, right? So this is something that we talked about, and obviously जिस जो मैंने आपको उसको आसान ज़ुबान में समझाया था कि हार्डवेयर है, right? And software is the environmental aspect of it, or the factors therein. And how those environmental factors, for example, they fuel your aggression, and the fact that you have a predisposed mechanics तो जिसमें और ज़्यादा वो आपका गुस्सा उभर के आता है, right? So आज के एपिसोड के अंदर we are going to talk about firstly aggression, whether it is caused by frustration. Now imagine कि आपने एक बहुत ही गर्म दिन है कराची का, एंड यू आर वेरी थर्स्टी, और आप एक वेंडिंग मशीन पर जाते हैं, लेट्स से इससे पहले आपने 2 घंटे तक एक काम किया था, राइट? एंड यू वांटेड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ by drinking a cold water bottle or a juice bottle, whatever. You go to the vending machine, आप उसमें coin डालते हैं, और coin में से जो है ना वो coin stuck हो जाता है, and the vending machine doesn't give you the drink. आप दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा coin डालते हैं, और आप वो पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, और आपको वो drink भी नहीं मिलती. Now notice that your frustration is building up, and as a result of that frustration being built up inside you, आपका aggressive behavior बाहर निकल के आता है, and you start Beating up the vending beating up the machine. vending machine, Absolutely. right? So now that this is an example of how an aversive experience, यानी कि अजीब व गरीब चीज़ आपके साथ हुई है. सही है. मैं अजीब व गरीब नहीं कहते, इसको लिटरली कहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है. सही है. सिचुएशनली कोई चीज़ बुरी होती है, और उसके अंदर एक उसमें फ्रस्ट्रेशन एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा आपका सारा गुस्सा बाहर आ गया. है, राइट? What do you think? Do you think that और इसमें रोड रेज के भी इंसिडेंट्स आज आ सकते हैं? I think there is definitely a certain element of ke there are a lot of things that are going in our external environment that are triggering us to a certain degree, and majority of the time we're able to keep it under control. Then at times things happen in a particular pattern where we completely lose our cool and we vent out. We may scream at a person. We may get violent with a stranger. We may get physically aggressive. So a lot of times I feel like these things are at the surface, but they never come out. But once you cross that particular tipping point or threshold, then it's like everything comes out that may have nothing to do with that particular moment also. You mentioned something कि majority of times you may able to curtail frustration. हो सकता है कि आप frustrated हैं लेकिन आपका गुस्सा लेकिन नहीं आ रहा निकल के, right? और experiments में भी वही चीज़ नज़र आई है. Experiments में एक mixed results किस्म के आए हैं कि sometimes frustration may lead to aggression and sometimes it doesn't, right? अब बर्कोविट्स ने जिसने ये थ्योरी बनाई थी उसने भी इस चीज़ को समझा,
उसने देखा कि हाँ ये अब ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस एग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, अमूमन लोग इरिटेटेड भी हो जाते हैं, Huh, it also राइट? depends on ki, which state are you in. For example, are having an amazing day and you're stuck in traffic. You're gonna feel very differently than if you're having a really bad day and you're stuck in traffic. अच्छा, इसके अंदर जो बर्कोविट्स ने बोला था ना, एंड टेल मी विद इन दैट एग्जांपल दैट यू जस्ट कोटेड, फ्रस्ट्रेशन इज प्रोड्यूस, इट ओनली प्रोड्यूसेस एग्रेसिव बिहेवियर व्हेन द अदर पर्सन's actions they seem unjustified. When the external environment may seem unjustified, it also depends on how, like, the disparity between your expectations and what's really going on, उसमें कितना ज़्यादा difference है. For example, if you normally वो तो पता नहीं चल सकता ना, एक इंसान का परसेप्शन है. मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ एंड देन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक. एक एक्सपेरिमेंटर ने ये किया था कि उसने एक अकॉम्प्लिस को बोला, जो कि एक्सपेरिमेंट का पार्ट था. उसने एक रूम में काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज़ दी. उन्होंने बोला कि आप इसको हल करें. और अकॉम्प्लिस क्या कर रहा था, दैट ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, एज इफ ही वाज गिविंग द इम्प्रेशन that I did not hear what the instructor said. Thereby, he interrupted the task of the entire group, and people felt frustrated and thereby aggressive because they felt कि unjustified behavior एक इंसान का जो सुन नहीं रहा instruction. On the other hand, उसने एक और ग्रुप के अंदर इसी ही बंदे को सिर्फ हेयरिंग एड पहना दिया और कहा कि मैं सुन नहीं सका, मेरा हेयरिंग एड है. And the fact that they felt it is justified, they felt irritated but not angry. Okay. Right? Does that make sense? That makes complete sense because you're also self-conscious in that particular way. For example, if you're honking at someone and they step out and they don't have one limb, all of a sudden you're like, oh my God, I'm such a horrible human being. Who is this person without a limb driving? So it's like, oh my God, like, acha, I can understand kya scene hai. अच्छा, let's move on to डिस्प्लेसमेंट थ्योरी. ये हम लोगों ने अमूमन अपने कल्चर में, सोसाइटी में सुनते हैं कि टीचर जो है अपना फैमिली का गुस्सा स्टूडेंट्स पे निकाल रहा है, राइट? ऐसा ही है. या फॉर एग्जांपल जो बॉस अपना हस्बैंड बॉस जो है अपना निकाल रहा है, एम्प्लॉइज पे निकाल रहा है, राइट? सो दैट्स एसेंशियली इज डिस्प्लेसमेंट. मैं उसका एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ एंड देन ऑब्वियसली इफ यू वांट टू एक्सपैंड ऑन दैट यू कैन. एक्सपेरिमेंट ये हुआ था कि कुछ बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, उन्होंने एक एक्सरसाइज दी, परफॉर्मेंस एक्सरसाइज थी, और उसमें एक्सपेरिमेंटर ने जानबूझ के बच्चों को इंसल्ट किया कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी आपकी, ये था. उसके बाद डायरेक्टली उन बच्चों को बोल दिया जिनको इंसल्ट किया उन्होंने, उनको बोला कि अब डिसाइड करो एक दूसरे इंसान की परफॉर्मेंस को, देखो उसको, और आप डिसाइड करोगे कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और वो मिस्टेक कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस में या टास्क में, तो यू कैन गिव दिस पर्सन कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, कि उसका हाथ आप एक पानी में, ठंडे पानी में डाल सकते हैं. सही है. जिसको एक्सपेरिमेंटर ने इंसल्ट किया था, सही है, उसने उसको एंगर को डिस्प्लेस करते हुए, जब भी किसी भी स्टूडेंट ने मिस्टेक की तो उसको उसका हाथ पानी के वाले में, उसमें ट्रीटमेंट उसको लॉन्गर दिया, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट तवील अरसे तक ज़्यादा दिया, यानी बनिस्बत के उन लोग स्टूडेंट्स के जिनको उसने इंसल्ट नहीं किया था. सो दिस प्रूव्स हाउ फीलिंग्स आर डिस्प्लेस्ड, नेगेटिव फीलिंग्स एक जगह से निकल के आप दूसरे इंसान किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो. बिल्कुल ऐसा है. Right? Anything that is coming up as an example or a personal anecdote? I think it also happens a lot in terms of, for example, in a marital dynamic, a mother's stress as a wife manifests on the children. Or if she feels that, you know, she's not being treated properly, it may manifest on the husband or the children, or in some other places, or in some other behaviors. तो eating disorders, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा common होती है and people are very unconscious of it. I think it's very important to, if we are अभी जो लोग सुन भी रहे हैं उनको they should visualize frustration या aggression in a bottle, और वो जैसे ही बढ़ती जा रही है, जो उसका क्रॉक स्क्रू होगा या ऊपर से अगर कोई बोतल बंद होगी, it's going to burst open. वो क्रॉक स्क्रू जो होगा वो समझे एग्रेसिव क्यूज हैं. If you get an aggressive cue from anywhere, वो हो सकता है प्राइम भी आप कर रहे हो, राइट? कि आपने कहीं देखा है ऐसा एग्रेशन की क्यू और आपको भी वो चीज़ क्यू आपने इंटरनलाइज कर दिया, आपने कहीं से देखी. इट कुड जस्ट बी a remark, a sarcastic remark. It could just be an expression. It could just be a sentence which was said
एक डिफरेंट तरीके से टोन से लाउड आवाज़ के अंदर, दैट कुड बी जस्ट योर क्यू और योर ट्रिगर। और अचानक से जितना भी बॉटल्ड अप फ्रस्ट्रेशन एंगर होती है जो हो सकता है दूसरी चीज़ों के ऊपर हो, और अचानक आप उसी इंसान के ऊपर निकालते हो, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ let's talk about the concept of relative deprivation. I'm going to explain what relative deprivation is, and because it is very much concerned with what Pakistani society at the moment is going through, so we can have a conversation on that. Frustration, relative deprivation is the frustration that arises from the gap between expectations and attainment. मेरी तवक्को इतनी है, मुझे मिल इतना रहा है, राइट? अब जो लोग कहते हैं, और इसके ऊपर रिसर्च भी अगेन हुई है, कि पीपल दे आर मोर हैप्पी एंड देर आर लेस क्राइम्स इन कंट्रीज़ जहाँ पे इनकम इक्वालिटी ज़्यादा नहीं होती है, जहाँ इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, इनकम इनइक्वालिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि क्राइम भी ज़्यादा है, लोग खुश भी नहीं है, और वहीं पर रिलेटिव डिप्रीवेशन भी लोगों को महसूस होती है। कार्ल मार्क्स ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके ऊपर कही थी। उसने कहा था कि चाहे घर जितना छोटा हो या बड़ा हो, मैटर ये करता है कि इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग के घर हैं वो भी उतने ही होने चाहिए, राइट? लेकिन अगर के आपने एक उन्हीं ही घर, उन जो कम्युनिटी के हैं अपना घरों की, उसमें अगर एक आपने साथ में महल बना दिया, तो अब उन सबको अपना घर छोटा लगेगा। ऐसा ही है। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन, कि आप कंपेयर करते हो अपने आप को कि मेरे पास क्या नहीं है और उसके पास वो चीज़ है, और जितना इकोनॉमिक रिसेशन होगा उसमें उतनी ही लोगों को ये ज़्यादा महसूस होगी। एंड द पॉइंट है विद इन दिस इज़ दैट रिलेटिव डिप्रीवेशन लीड्स टू एग्रेशन, राइट? अगर के एक इनकम इनइक्वालिटी होगी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो फिर वो एग्रेसिव भी होंगे। एंड इन दिस Berkowitz, what he was talking about, the frustration is unjustified. I mean, the frustration stems from not a real sense of pain or a real tangible problem. It doesn't, but Berkowitz ने ये बोला था ना कि अगर के फ्रस्ट्रेशन आपकी जस्टिफाइड है, राइट? तो अगर इस सिचुएशन में तो जस्टिफाइड है, गिवन द फैक्ट दैट यू फील दैट यू हैव लेस देन द अदर पर्सन। और ये अफ्लुएंस का कल्चर आपको टीवी के अंदर भी नज़र आता है, कि अगर मीडिया आपको दिखा रही है कि देखें अमीर लोग ऐसे होते हैं, राइट? और आपको महसूस हो रहा है कि मैं यार इस पोजीशन में कभी भी नहीं पहुंच सकता। सही है। There's going to be a lot of frustration क्योंकि सोशल in your मोबिलिटी life. है ही नहीं ना अपवर्ड। Exactly. आपके पास ना अपॉर्चुनिटी है, ना मेरिटोक्रेसी है, ना एक रिसेशन भी अलग चल रहा है। तो अगर के आपने ये इंटरनलाइज कर लिया है कि मेरी सोशल मोबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो that would lead to you being in a state of frustration 24/7. Exactly, relative deprivation, and then anger, right? Now let's move on to social learning theory. Okay. Right. Particularly with the context of anger and aggression. Aggression. कि आप अपने, let's just set the basis for social learning theory. कि जितना भी जो भी बिहेवियर आपने सीखते हो, वो हो सकता है कि एक तो एक डायमेंशन है बायोलॉजी की, दूसरी डायमेंशन है कि आपने सारी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से ही सीखी हैं। तो एक इंसान एक क्लीन स्लेट के साथ पैदा होता है, और जो एनवायरनमेंट होता है वो इर्द गिर्द जो भी वो चीज़ें अपने देखता है, अपने पेरेंट्स का, सोशलाइजेशन के जो मेन एलिमेंट्स हैं, चाहे आपकी फैमिली हो गई, चाहे आपके पीयर्स हो गए, स्कूल हो गया, या फिर मीडिया हो गई, all of these play a role in shaping your reality and behavior and your personality. तो इंसान क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस और अपने तजुर्बे जो भी उसके हैं, वो बेसिकली उसकी एक एमैलगमेशन है अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी। Let's talk about Bandura's experiment. How about you explain the Bandura experiment to viewers, and then we can talk about ये जो मैंने अभी बातें कही हैं, बंडूरा का एक्सपेरिमेंट बेसिकली इसी के अराउंड सोशल लर्निंग थ्योरी इसी के अराउंड बनी है, राइट? ऐसा ही है। So Alfred Bandura's his thought process was particularly from the perspective of how much do we learn from our social experiences. So what Alfred Bandura did was there was one adult in a room,
and there were several children in the room. And the adult in first experiment treated a doll very aggressively. A bobo That is doll. a bobo doll, exactly. Like उसको the एक्सप्लेन person, ऐसे करेंगे जिसमें हवा भरते हैं, देन यू हिट द डॉल एंड देन द डॉल बेसिकली इट्स एन इन्फ्लेटेड डॉल, exactly. तो Then वो हवा से जो है ना पहले नीचे लगती है और फिर वापस आ जाती है, राइट? so it becomes normal ये again. नॉर्मल अगेन, या So that was one way that the doll was treated. Then in the other example, the doll was treated nicely. And in both experiments, children were present and children witnessed that. When children were left alone with the Bobo doll, it showed that children who saw an adult treat a Bobo doll aggressively, they also treated the Bobo doll aggressively. Whereas in the other experiment, when they saw an adult treating the Bobo doll in a proper manner, they too treated the Bobo doll in a proper manner. And I think a further extension of this is that a lot of times individuals who witness domestic violence also become perpetrators of domestic violence themselves. एग्जैक्टली लाइक एक और इसके अंदर मुझे बताओ कि ये बच्चे जो देख रहे थे, वर दे एक्चुअली ऑब्जर्विंग ह्यूमन बीइंग्स लाइव, द रोल मॉडल लाइव, और were these children viewing it through television? They were viewing it live, as far as I can remember. There were different settings. एक चीज़ तो एक नॉर्मली एक्सपेक्टेड है ना कि आप किसी के सामने कोई चीज़ एग्रेसिव करोगे, राइट, तो बच्चा उसको इमिटेट करेगा ही करेगा. दिस वाज समथिंग दैट वाज इवन नोन टिल दैट पॉइंट आल्सो, दैट चिल्ड्रन डू इमिटेट और वो बिहेवियर को मॉडल करते हैं. What was more alarming in this experiment was the finding that के जो आप विजुअली उनको चीज़ दिखा रहे हो वो उसको भी इमिटेट कर रहे हैं. सही है. अब ये एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. इसका मतलब है जितना भी मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जितना भी आप बच्चों को वीडियो गेम्स खिला रहे हैं, जितना भी पोर्नोग्राफी बंदा देख रहा है, उसका सारा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है. Absolutely. इसमें ये भी कहा जा सकता है आज की डिजिटल एज में कि जितना भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको वो अफेक्ट कर रहा है, आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, आपके माइंडसेट को अफेक्ट कर रहा है, आपके माइंडसेट को अफेक्ट कर रहा है. दिस मीन्स दैट इफ यू आर वाचिंग अ लॉट ऑफ वायलेंट कंटेंट, it is going to affect your behavior. It might increase aggressive tendencies as well, right? So this was a very main point. अब सोशल लर्निंग थ्योरी अगेन यही कहती है कि आप इर्द गिर्द अपने जितनी भी चीज़ें देखते हो, आइदर थ्रू मीडिया और इन रियल लाइफ सिचुएशन, और अगर के एक सोसाइटी में आप रह रहे हो जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और जैसे हम ऑनर एक अगर हम कल्चर में रहते हैं, राइट, जिसमें एक चीज़ का ये एक समझे कि एक्सेप्टेड है कि कोई इंसल्ट आपको करेगा तो आप रिटेलिएट कर सकते हैं. Absolutely. राइट, तो Absolutely. आप ये चीज़ इर्द गिर्द देखते हो. अगर के किसी को गाली मिल जाए, कोई गाली देता है, तो वो अचानक से उसके ऊपर रिटेलिएट करते हैं, उसको मारना शुरू कर देता है, क्योंकि एक नॉर्म सोसाइटी का बना हुआ है, और ये वो इज्जत और गैरत वाला नॉर्म है जिसके अंदर पीपल आर sort of like willing to give up their lives. और वो हो सकता है खुद वायलेंस परपेट्रेट ना भी करना चाहें, क्योंकि वो सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यार 10 और लोग देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे मुझे कि मैंने कुछ नहीं किया. तो वो उस तरीके से भी पीयर प्रेशर की जो हम बात करते हैं कंफर्मिटी के अंदर. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्ले अ ह्यूज रोल इन even like aggravating the social norms around aggression. Now let's talk a little bit about aversive experiences. Aversive experiences शुरुआत में मैंने बताया था कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए. अब बुरा होने के बाद, बुरा होने में हमने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की बात की कि एक चीज़ आपके साथ ये हो सकती है जो वेंडिंग मशीन की मैंने एग्जांपल दी. दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है पेन. तीसरी एग्जांपल ये हो सकती है इंसल्ट, और चौथी एग्जांपल हो सकती है हीट. Exactly. All of these are aversive experiences. बुरे चीज़ें हो रही हैं आपके साथ. They can lead to aggression. And then they lead to aggression. Now, aversive experience के बाद जो आता है ना, वो आता है एक arousal. अब उस arousal का मैं उसकी definition ये होगी, जब आप exercise करते हैं या आप ज़्यादा कॉफ़ी पी लें, तो उसमें आपका एक arousal होता है. Certain level of alertness. या life threatening situation में कोई अगर आपसे लड़ने के लिए आए, तो उसमें ये जो अराउजल है वो उसमें ये होता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, योर पाम्स फॉर एग्जांपल स्टार्ट स्वेटिंग, पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि हॉट फ्लशेस भी आपको हो रहे हो, एंजाइटी का रिस्पॉन्स होता है नॉर्मली. अब ये अराउजल जब इंसान को महसूस होता है,
then that obviously leads to aggression. So aversive experience, Arousal. and then that leads to arousal, and then that arousal fuels your aggression or leads to aggression, one way or the other. Now, whether you are aggressive or not, whether you act aggressively or not, that depends on the consequences that you expect. Okay. Fear. Exactly. The consequences in the sense ke agar ke if you feel that your behavior is the consequences that you're going to be rewarded for or you feel safe that you can aggress, or that you're going to be rewarded that you're going to aggress. So the consequence that you're going to expect, that is going to fuel your aggression, or that is going to decide whether you're going to be aggressive or not. अब पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हुए what I'm saying is from a social learning theory कि आपका aggression reward होता जा रहा है, बचपन से reward हो रहा है. Absolutely. Right? And you also know you can get away with it. बात मनवानी है तो ऊंची आवाज में बोलो, बात मनवानी है तो लड़ाई करो, गुस्सा करो किसी के ऊपर, एंड देन आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है, और कोई रेप्रिमांड भी नहीं करेगा, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा. इवन लाइक द लॉ सिस्टम एंड द क्रिमिनल लॉ सिस्टम आपका, उसमें भी आपकी बेल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. Exactly. Right? Another aversive experience is pain. 1967 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था where the experimenter induced electric shocks to rats. Interestingly उसने ये देखा कि जितना ज़्यादा उसको जो पेन दे रहा था वो, these rats were fighting with each other. So there was almost a correlation between the more pain you induce, the more aggressive a person becomes. And this could be psychological pain also, by the way. जिसकी वजह से इंसान aggressive should also be emotional pain. Emotional pain also, physical pain भी दे सकते हैं, उसमें भी आपका aggression increase होगा, और किसी को अगर आप physical pain दे रहे हैं उसमें भी होगा, दोनों में होगा. Absolutely. Another aversive experience is heat. अब अगर मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताता हूँ, and then we can talk about whether this is correlational or causation, कि मैं ये कह रहा हूँ कि गर्म वेदर की होने की वजह से क्राइम रेट एक मुल्क में ज़्यादा है? नहीं, obviously नहीं. There are other factors as well, but yes, this factor is important. Being one of the factors to aggression, heat is important. और उसमें ये देखा कि वो ड्राइवर्स जिनके गाड़ी में AC नहीं था, और ये more angry, या अगर लेकिन कराची के मौसम में हो सकता है कि और भी ज़्यादा. ओरिजिनल स्टडी हुई थी एरिज़ोना में, वो भी बहुत ही गर्म वेदर है, डेजर्ट एरिया है, और वहाँ पे AC नहीं चल रहा था, तो दे वर क्विक टू हॉन्क द अदर stalled car. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो, और वो दूसरे जो है जिनके गाड़ी में AC चल रहा था, दे वर नॉट हॉन्किंग. तो उसके अलावा और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं अराउंड दिस डायमेंशन के एक वेदर का कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान के बिहेवियर में. Yes, there is a correlational aspect to it कि अगर के sticky weather है, गर्मी ज़्यादा है, then there is a connection between that and aggressive tendencies of people. So one more, that's also an important point. Insults. What do you think? Insult as an aversive experience. अगर के मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि cultural specific है कि सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं. This applies everywhere universally. कि अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया है, that could be an aversive experience and that may lead to aggression. Absolutely. And I think the more conscious you are with regards to that, the more aggressive you're going to be. But again, उसमें मैंने एक second line आपके लिए बनाई थी कि if an aversive experience doesn't lead to arousal, then it wouldn't lead to aggression. तो are those insults leading to arousal or not? Okay. Right? सही है. अगर कि मुझे arousal महसूस नहीं हो रहा, जो मैंने बताया, मेरी palpitation नहीं, मेरी body threat में नहीं जा रही, मुझे गुस्सा, जो मैं गुस्सा कह रहा हूँ, तो again mostly people connect that with arousal almost always. यानी कि arousal feel करते हैं तो उसको interpret करते हैं aggression पे. तो इसको समझाने के लिए मैं शैक्टर का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. शैक्टर एंड सिंगर का एक्सपेरिमेंट इमोशंस का बहुत बेसिक किस्म का एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एड्रेनलिन दी, इंजेक्शन दिया एड्रेनलिन का. एड्रेनलिन का इंजेक्शन से होता ये है कि आपको अराउजल महसूस होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. जैसे आप भागते हैं तो अचानक से एक महसूस होता है ना जिस्म का रिस्पॉन्स, आपको वो बगैर भागे हुए इंजेक्शन देते हुए आपको वो एक्सपीरियंस होता है.
एक ग्रुप को उन्होंने बताया कि हम आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, उसके सिम्टम्स आपको ये महसूस होंगे। दूसरे ग्रुप को बताया ही नहीं कि ये इंजेक्शन करता क्या है, सही उनको है। उन्होंने बोला कि विटामिन का इंजेक्शन है। सही है। किया ये दोनों ग्रुप्स के साथ कि एक इंसान उसके साथ बिठा दिया, एक सिचुएशन के अंदर वो खुश मिजाज इंसान था, यूफोरिक इंसान था। सही है। दूसरी सिचुएशन के अंदर वो इंसान बड़ा हॉस्टाइल किस्म का था। सही है। जिन लोगों को नहीं पता था ना सही कि है। हमें इंजेक्शन किस चीज़ का दिया जा रहा है, हम्म। दे सेट कि हमें गुस्सा आ रहा है इस इंसान की वजह से, या हमें खुशी हो रही है सही इस है। इंसान की वजह से। तो एड्रेनलिन खुशी भी बढ़ा सकता है। एड्रेनलिन आपका अराउजल दे सकता है, सही। कुछ भी नहीं कर रहा, खुशी सही। और उदासी नहीं दे रहा वो। सही है। पॉइंट ये है कि इंसान को अराउजल महसूस हो रहा है, सही वो है। उसको लेबल कर रहा है इन्वायरमेंटल चीज़ों को देखते हुए, ओके, रादर देन बायोलॉजी। रादर देन मतलब इमेजिन के उसको पता नहीं है कि उसको ये कैसे महसूस सही होता है। है, राइट। लेट्स से कि एक इंसान है जो कि एक्सरसाइज करके आया है, सही है। राइट, और उसका हार्ट बीट उसकी बढ़ी हुई है। हम्म। Now this person is predisposed to behaving in a certain way as a result of their arousal. लेकिन वो उस arousal को देखेगा नहीं क्योंकि उसको पता नहीं है। सही है। अब वो जो पहली कंडीशन वाले लोग थे ना, जिनको पता था कि ये मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा है, एड्रेनलिन का इंजेक्शन है, इसके सिम्टम्स ये महसूस होंगे मुझे, सही है। उन्होंने उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सही है। They did not say that they were happy. सही They है। did not say that they were sad as a result of, या they angry as a result of that person जो कि या तो यूफोरिक था या वो हॉस्टाइल था, दोनों सही है। सिचुएशंस के अंदर उन्होंने सही है। कुछ नहीं बोला। इंटरेस्टिंगली जिसको कोई भी कंडीशन में चेंज कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ एक को बताया और एक को नहीं बताया। सही है। जिनको मैंने नहीं बताया उन्होंने बोला हम खुश हो रहे हैं और उदास हो रहे हैं, और जिनको मैंने बता दिया वो कुछ भी नहीं कह रहे। सही है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी रिलाई ऑन एनवायरमेंटल क्यूज, ओके। राइट, Based on how we टू feel. लेबल आवर इमोशंस। सही है। मैं ये ऐसा महसूस कर रहा हूँ इस इंसान की वजह से, मुझे सही है। महसूस हो रहा है इस वजह से। या तो मैं अगर के लेट्स से दैट इफ आई हैवंट हैड प्रॉपर स्लीप, और मैं उठ के फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ कैफीन, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा यार मुझे गुस्सा आ रहा है, इस बंदे की ये ड्राइविंग कितनी तेज़ कर रहा है, सही मुझे इस है। पर गुस्सा आ रहा है, हम्म। या ये इसने मुझसे ऐसे बात क्यों, इसने मुझे ऐसे देखा क्यों, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। तो दे आर ट्राइंग टू लेबल द इमोशन और द एक्सपीरियंस अराउजल जो महसूस कर रहे हैं To बाय ऑल ऑफ external दीज एक्सटर्नल, environments. हालांकि सही। उससे उसका ताल्लुक नहीं है। सही है। उसका ताल्लुक जो था वो नींद से था, एंड हैविंग अ लॉट ऑफ कैफीन एज अ रिजल्ट ऑफ फीलिंग दैट अराउजल, सही है। राइट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो अराउजल को आप जो आप महसूस कर रहे हो, एंड देन यू बेस्ड ऑन दैट अराउजल यू लेबल इमोशंस जो भी आप उस टाइम पर फील कर रहे हो, राइट, चाहे वो एंगर हो। और इंटरेस्टिंगली sexual excitement is also this similar as this arousal. So people, for example, If you are sexually aroused, you blame it on someone, you label it. yes, so workouts में यही होता है ना, you exercise so सही you है। feel aroused, तो आप externally label करते हो कि मुझे feeling क्यों आ सही रही है। है, right after that as well. सही है। So you might think that this person is attractive. सही। It has nothing to do with that person. सही है। It has just to do To do with with your your own internal biochemistry. mechanism. Exactly. सही है। इसका अराउजल का ना, जैसे मैंने कहा, हर इमोशन का इसी से ही ताल्लुक होगा एक सही तरीके है। से। मैं अराउजल फील कर रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम सेक्सुअली टर्न्ड ऑन, दैट आल्सो वुड मीन दैट आई एम एग्रेसिव, दैट सही है। आल्सो वुड मीन दैट आई एम हैप्पी, यूफोरिक, सही है। राइट। तो या तो फिर मैं सैड हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को समझाती हैं, सही एंड है। एनजाइटी भी हो रही है मुझे। तो मैं जब फोरेंसिक साइकोलॉजी में आऊँगा ना सेक्शुअल ऑफेंडर्स का, तो जब वो देखते हैं कि ये क्यों है अगर किसी को ये चीज़, तो वो मैकेनिज्म जो है ना उनका, दे मिस लेबल एनजाइटी, जो उनको एनजाइटी महसूस होती है, दे मिस लेबल दैट विथ सेक्शुअल अराउजल। ओके। बिकॉज देयर इंटरनल मैकेनिज्म इज स्पॉइल्ड, तो कि उनको बार बार एनजाइटी होती है, देयर बॉडी गोज इनटू अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और अराउजल महसूस होता है बार बार उनको, So they label it as दे लेबल इट एज sexual arousal. सेक्शुअल अराउजल हमें हो रहा है, या हम इंटरेस्टेड हैं किसी में, Okay. तो वो उनका इंटरनल मैकेनिज्म शायद स्पॉइल्ड हो जाता है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रेशन के क्यूज एज वेल। व्हाट इज अ वेपन इफेक्ट? A weapon effect is basically, I think it's a very natural thing and it's a very subconscious thing. Ke you tend to be more aggressive if you have a weapon at hand. If you have a weapon around you. For example, if someone is being aggressive with you and you're holding a cricket bat,
there are more chances of you being aggressive towards that person as opposed to if you were not holding anything. दैट्स ट्रू. और आपको अगर के वेपन हो आपके इर्द गिर्द तो यू आर गोइंग टू हैव एग्रेसिव थॉट्स एज वेल एंड दैट मे मैनिफेस्ट इनटू योर बिहेवियर. यहाँ पे मैं तो बोलूँगा हमारे पास वीगो इफेक्ट भी है. Absolutely. यानी कि किसी के पास अगर वीगो होती है And और you उसके also, पास when you see it, you also know this person is gonna be driving irrationally. एग्जैक्टली एंड अब्रेसिवली वो सारी चीज़ें एक Exactly. तरीके से. तो हमारा एक क्यू है वीगो का भी ना. इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक कनेक्टेड A विद social cue. एग्रेशन या एग्रेशन का एक क्यू है हमारे लिए कि ये एक इंसान इस गाड़ी चला रहा है तो इस किस्म की चीज़ें करेगा. एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल टुगेदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडिया इन्फ्लुएंस. वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी. तो सोशल लर्निंग थ्योरी में एक बंडूरा के एक्सपेरिमेंट में हमने बात की थी और मैंने आपसे पूछा कि अगर ये देख के हो रहा है उनको विजुअली, बिल्कुल हो रहा है. बच्चे विजुअली देख के बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ना. Absolutely. उसमें जो हम बात करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल वायलेंस and people who watch a lot of pornography. If you are watching a lot of pornography, that is going to Alter your brain chemistry. Brain chemistry, it is neurology. going to create a level of apathy as well. If you are watching a lot of violence, sexual violence, so you're going to be, to an extent, you're not going to be as affected by rape and sexual violence against women. It creates again a level of apathy and वो rape myth वाले चीज़ को और ज़्यादा fuel करता है. जो sexual offenders commonly whenever they are arrested, they did an experiment 155 जब उन्होंने sexual offenders को देखा, when 85% of them had a history of watching pornography. और वो sexual violence, pornography again, there's a distinction here. Two consenting adults having sexual intercourse और आप visually उसको देख रहे हो, ये आपकी morality पे है कि सही है गलत है. सही है. आपके ऊपर है वो. I'm not going to tell you to watch it or not watch it. What I'm particularly talking about here is violent pornography. Is violent pornography जिसके अंदर you are not considering you're overpowering, dominating a woman. You're forcing yourself onto someone. Exactly. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. उसके अंदर if you're going to watch something like that, अपने आप को ये नहीं बोलें कि मुझे ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू एट अ सबकॉन्शियस लेवल एज वेल. आपके अंदर जैसे मैंने कहा एपैथी क्रिएट कर देगी. एंड या तो एक तरीके से इट्स आल्सो गोना make you desire that. Exactly, right? And replicate and imitate perceptually dysregulate भी हो जाएगा ना एक आपकी reality. Exactly. कि आपको लगा कि यही है. This is normal. Exactly. This is how it happens. और औरतों को ये पसंद है and a no, does it really mean a no? ये वहीं से ये चीज़ें fuel होती हैं, right? But are we saying here, it's very important, जो मैं video gaming के बारे में भी same चीज़ बोलूँगा कि is pornography causing violence? I think it's violent not pornography causation. causing violence. I wouldn't say it's causation. I would say it's correlation. It could be the other way around also, that violent men like violent pornography. But do you see that two-way traffic that we talked about between biology and behavior? Men, I mean, you can say that there is a more probability of violent men liking more violent pornography. But the nature of pornography is as such that you always want to take it up a notch. So even someone who starts off watching average level pornography would at some point descend into more higher levels or more devious forms of pornography. So you're saying it would start from something, but it would even it would stretch and it would exactly. I mean, you're conditioning your mind and you're becoming numb to one level of content. Then you need something else to stimulate. But another question ये है ना कि either I have the biology, that is the reason why I like such things, right? ये भी तो एक चीज़ है कि is it because I'm predisposed to violence? तो इस वजह से मुझे ये pornography भी इसी किस्म की पसंद आ रही है, right? या तो ऐसा है कि मुझे इतना ज़्यादा दिखाया गया है कि मैं इससे एडिक्ट हो गया हूँ, मैं अब मुझे पसंद आना शुरू हो गई, ये मेरे एनवायरनमेंट के अंदर ये है तो इसीलिए मुझे पसंद आ रही. मैं दोस्तों से भी इसी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ भी मैं वही चीज़ देख रहा हूँ.
तो इस वजह से मुझे ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, या तो ये है कि मेरे अंदर मैकेनिज्म पहले से ही है वो, और इस वजह से मुझे वो चीज़ अपील कर रही है. तो देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, बिकॉज वी आर गोइंग नेचर एंड नर्चर वाली चीज़, बिकॉज वी डिड Exactly. दैट बिफोर Because I feel ऑल्सो. like both things fuel each other. I mean, Exactly. if you're viewing excessive pornography, it is going to affect your brain chemistry as well as your biology. The same argument is made for video games. Okay, if you're playing a lot of violent games, video games, it is going to affect your temperament. You're going to become more aggressive. इसमें experiments ये कहते हैं कि if you are playing video games जिसके अंदर आप किसी को मार रहे हैं, किसी को अटैक कर रहे हैं, then the way you describe human beings, और उनके बाद उन्होंने जब पार्टिसिपेंट से पूछा, जब उनको किसी ने इंसल्ट किया, तो they describe those people as non-human, the way they described them, and that creates a level of apathy. So I mean, that is the argument that they make. It's also the same way with like when you're describing, for example, this whole term of terrorist. It's almost like they're not normal people. They're like some other kind that are doing some whatever it is that they're doing. They have nothing to do with humanity or us, and they're like very distant off from us. Exactly. तो कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, और अगेन बच्चा जो है वो वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता है, वायलेंट वीडियो गेम्स पर्टिकुलरली, उसके साथ कोई चीज़ अगर अवर्सिव होती है, तो वो उसको इंटरप्रेट समझने की तो कोशिश करेगा ना कि अगले इंसान का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था. तो दे वुड डिस्क्राइब दिस पर्सन एज अ नॉन ह्यूमन, कि ये है ही ऐसा, ये वैसा, ये इंसान नहीं है, एज अपोज टू समवन हु डजंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइक प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स या प्रेजेंटली प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स. वो उस इंसान के बिहेवियर को एक वेरी ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करेगा कि हो सकता है उस इंसान का दिन बुरा था, एज अपोज टू लाइक डिस्क्राइबिंग देम कि वो एक इंसान ही नहीं है, राइट. सो येस, वायलेंट वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफी, मीडिया के अंदर आप जितना एग्रेशन देख रहे हैं, राइट, दैट्स समथिंग दैट आई थिंक दैट पीपल हु आर वॉचिंग शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ, दैट अ यंग माइंड इज अ स्पंज. तो आप जितना उस बच्चे को एग्रेशन दिखाओगे टीवी के ऊपर, डू नॉट लेट योर चाइल्ड बी अनमॉनिटर्ड, अनसुपरवाइज्ड ऑन यूट्यूब, ऑन इंटरनेट, ऑन टेलीविजन, कहीं पर भी कोई भी चीज़ देख रहे हैं. इवन टू एन एक्सटेंट के जो आप टॉम एंड जेरी के अभी जाके आप शोज देखें ना, तो द वे दे आर वायलेंट टुवर्ड्स वन अनदर, इट इज सिंपली जस्ट बुलिंग वन अनदर ना. उसमें जितनी भी चीज़ें आप देखोगे, बच्चे वो भी चीज़ सीखते हैं. बच्चे जो है, अगर आप उनको मीडिया से, आप ड्रामा टीवी शोज़ में से वो चीज़ देख रहा है वो बच्चा, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट देम, और वो फिर उनका जो एक टेंडेंसी होगी वायलेंस की वो बन जाएगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू लर्न व्हाट के एग्रेशन is going to, it's rewarding and I feel safe while doing it. It is going to create, almost always any aversive experience is going to create arousal, क्योंकि उनको उस चीज़ से रिवॉर्ड मिलता है, एंड इट्स अ रीइंफोर्स्ड साइकिल जो बचपन से होता है. इट्स अ फीडबैक लूप, और वो देख के वो चीज़ भी सीखे हैं इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में. तो कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट, मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा जो हम बात कर रहे हैं सोशल लर्निंग की, तो हाउ टू रिड्यूस aggressive cues in your environment, how to limit media exposure, जो violent media exposure है in your environment, और फिर ये जो statements हैं, non negotiable statements, that there is no reason to hit someone, that those statements have to, and अगर notice करेंगे ना, if people are sort of like negotiating those things, कि नहीं मारना इस situation में है, और cheat करना इस situation में ठीक है, right? तो दोज आर ऑल साइंस ऑफ एग्रेशन. राइट, कहीं ना कहीं पे बच्चों को भी आपने ये सिखाना पड़ेगा दैट दिस इज नॉन नेगोशिएबल, दैट यू कांट बी एग्रेसिव टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग, एंड ऑब्वियसली टीचिंग देम हाउ टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्योंकि एग्रेशन बाय द एंड ऑफ इट, it has to do with communication issues, not being able to talk properly, not being able to express yourself. और displace आप कर सकते हो by having healthy coping strategies. लाइक उसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ ना किस्म का कथारसिस मिल जाए, आपने अपने इमोशंस को डिस्प्लेस कहीं और कर दिया है, विच इज़ जिम. लेकिन अगर मैं वो कह रहा हूँ, अवर्सिव एक्सपीरियंस रोज़ है. अब बॉस अगर के आपको डांट रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं, और आप रोज़ अगर आप अवर्सिव अपना एक्सपीरियंस डिस्प्लेस कर रहे हो किसी और एक्टिविटी में, वो कितने हद तक चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो रोज़ हो रहा है तो बॉटल अप होता जाएगा. कम्युनिकेटिंग कि आपका बिहेवियर मुझे अफेक्ट कर रहा है,
focusing on those frustration के elements that I talked about, focusing also on diet, focusing also on sleep, all of those biological aspects that I said, ये आपको थोड़ा बहुत help कर सकते हैं in curtailing your aggression. Communication में जो है using I statements as opposed to you statements, focusing on how the other person's behavior has affected you and how you can express those emotions and feelings in a healthy manner as opposed to simply lashing out on people and being aggressive. Those can also help. Talk therapy can definitely help also. So yeah. All right, I think this was a really good session for everyone watching. I think just to summarize it for people, we talked about the biological aspects of aggression. और आप अपने लाइफस्टाइल और रूटीन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, डाइट को कैसे रख सकते हैं टू कर्टेल योर एग्रेशन एंड आल्सो बीइंग ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस. एग्जैक्टली. फिर हमने सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर दी कि आप एनवायरनमेंट में देखें कितना एग्रेशन है. ऐसा तो नहीं यार हो रहा कि रोज कोई एग्रेशन है, इर्द गिर्द आपका दोस्त है जो आपको बेसिकली पंप अप कर रहा है और फिर आप भी एग्रेसिव हो रहे हो, या इर्द गिर्द देखो कि आपके साथ लोग कितने पैसिवली या एक्टिवली एग्रेसिव हो रहे हैं by using sarcasm, criticism and all of those things. उस चीज़ को भी curtail कर सकते हैं because you might be simply displacing your anger onto other people, or you might be sort of like learning behavior और उसको सिर्फ आप बचपन से ही repeat करते जा रहे हैं. एक चीज़ observe की है, repeat कर रहे हैं, and obviously आपको उससे हासिल तो हो रहा है ना, aggression से कोई ना कोई generally आपको एक मिलता है, आपको फ़ायदा मिलता है, social फ़ायदा मिलता है fear induce करने से, आपकी बात मान लेते हैं लोग. और तीसरी चीज़ है फोकसिंग ऑन फ्रस्ट्रेशन. अवर्सिव एक्सपीरियंसेस कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, एंड एज यू सेड के ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे आर अफेक्टिंग यू, एंड अराउजल आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है एंड उसको मीनिंग क्या देनी है, और जब मीनिंग देने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है कॉन्टेक्चुअली. Yeah. Catch us in our next episode of Social Psychology series, which is going to be episode 13. Which is going to episode be about 12, I think. Episode 12, which is going to be about? We'll decide. We'll decide. Okay, perfect. So we'll see it then. Thank you.